So what we are going to do now, as I told you, we are going to go in for the last remaining part of the chapter, that those important aggregates relating to national income, which I said will be the base for measurement of national income. When we are going to do methods of measuring national income, these aggregates will form the base of it. In the earlier class, we have already done domestic income and national income. Okay, so now when we discussed domestic income, we have seen what it is, and then we discussed national income. We have seen what it is. We see domestic territory concept. We saw the normal residence concept. So if we want to go in from domestic income to national income, or national income is given and you want to go to domestic income, there is a key word that is used, key term that has to be kept in mind. Children, keep in mind that I will be giving these keywords to you, and these keywords will determine or make your job easier to calculate national income. So this term is known as net factor income from abroad. It's known as, the key term is rather net factor income from abroad, NFIA, short form, NFIA. Now what is this NFIA? NFIA is nothing but what your factors in foreign countries are getting for rendering their services, what your normal residents are getting in foreign countries for rendering your services, and what the foreigners who are the non-residents and are in India, they are giving their factor services here, what they are getting for that. So net factor income from abroad. Okay, so what is factor income? Income of the factors. So that means if I want to talk about the concept of net factor income from abroad, as I said, it is nothing but factor income earned by our residents in the rest of the world. ROW means I'll use the short form for rest of the world. And factor income earned by non-residents in our domestic territory. Now all these terms should be clear to you by now. Can you read this? Factor income earned by our residents in the rest of the world, and non-residents in India. जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं और अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बदले जो उन्हें इनकम मिल रही है, और जो विदेशी यहाँ हैं, यहाँ के नॉन रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स नहीं हैं, ऑर्डिनरीली रिजाइड नहीं करते, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, कुछ समय के लिए यहाँ काम दे रहे हैं और उनके बदले में उन्हें इनकम मिल रही है. तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं NFIA बनाते हैं, यानी दिस माइनस दिस, दैट इज factor income earned by our residents minus factor income earned by non-residents. इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो है वो बताती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना चाहते हैं, तो जब हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ देंगे, डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ देंगे, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी. We will get national income. तो that means अगर ये इक्वेशन बन रही है, अगर नेशनल इनकम में से वाइस वर्सा विल बी ट्रू, अगर नेशनल इनकम में से हम NFIA माइनस कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी.
So I think if I put it before here, you see we are trying to move from domestic to national. Keyword है net factor income from abroad, net NFIA, factor income. So it is factor income earned by our residents in the rest of the world, and के बदले maybe I can put minus sign here. I can put minus sign here to make it clearer. Minus factor income earned by non-resident in our domestic territory. ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स विदेशों में अर्न कर रहे हैं, और फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स हमारी कंट्री में अर्न कर रहे हैं. तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम, अगर आपको नेशनल इनकम चाहिए तो डोमेस्टिक में आपको NFIA ऐड करेंगे, और यही आपकी इक्वेशन बन रही है. इक्वेशन बन रही है national minus NFIA will give you domestic income. Is that clear? So this is the first concept that we are discussing, that is how to move from domestic to national and national to domestic. Keyword will be NFIA. This you have to keep in mind. Is that fine? Okay. अब हम अगेन न्यूमेरिकल यहाँ ले लेंगे, किस तरह से डोमेस्टिक से नेशनल एंड वाइस वर्सा हमें जाना होगा. कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं. कीवर्ड है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा, देखिए अगर हमें नेशनल इनकम चाहिए तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे. अगर नेशनल इनकम चाहिए तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे, और अगर डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो नेशनल में से NFIA को माइनस कर देंगे. ये हमारे ध्यान में है. सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल. सो आपको मैं एग्जांपल लेती हूँ. इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. इसमें आपको दिया हुआ है. सो जैसे मान लीजिए अब हम पहले नेशनल इनकम ढूंढते हैं. सो व्हाट आई डू नाउ इज, आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम दी हुई है. डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ भी कह लीजिए, ये दिया हुआ है आपको. ये रुपीस में अगर मैं फिगर्स लेती हूँ तो आपको मान लीजिए ये 700 रुपीज दिया हुआ है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको 300 दिया हुआ है. और क्या कहा है आपको? कहा है फाइंड नेशनल इनकम. आपसे बोला है फाइंड नेशनल इनकम. सो व्हाट डू वी डू नाउ? डोमेस्टिक दिया हुआ है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है. आपको ढूंढनी है नेशनल इनकम. अब देखिए यहां पर आपको ढूंढनी है नेशनल इनकम. आपको ढूंढनी है नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और NFIA दिया हुआ है. तो डोमेस्टिक में NFIA को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम मिल जाएगी. सो कैसे दिखाएंगे आप? नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करनी है, तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर देंगे आप. पहले ये लिखना है. तो डोमेस्टिक इनकम कितनी? 700. NFIA कितना? 300. सो नेशनल इनकम कितना? 1000. Isn't it? So similarly, second example ले लेते हैं. फाइंड डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ भी कह सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, आप प्रोडक्ट वर्ड यूज करें या इनकम वर्ड यूज करें, इट विल मीन द सेम. सो अब आपके पास आइटम जो दिए हुए हैं उसमें आपको नेशनल इनकम दी हुई है. नेशनल इनकम, एनी फिगर, टेक एनी फिगर. ये क्वेश्चंस तो आप खुद भी बना सकते हैं. टेक एनी फिगर. आई एम टेकिंग स्मॉल फिगर सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो नेशनल इनकम इज 850. NFIA दिया हुआ है आपको. NFIA इज 30 से फॉर एग्जाम्पल. अब आपसे कहा है डोमेस्टिक इनकम ढूंढिए. सो अब देखिए आपको ढूंढनी है डोमेस्टिक इनकम. आपको दी हुई है नेशनल इनकम, आपको दिया हुआ है NFIA. नेशनल इनकम दी हुई है और NFIA दिया हुआ है. ठीक है ना? सो नेशनल इनकम में से NFIA माइनस करेंगे तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी.
है ना, डोमेस्टिक ढूंढने के लिए नेशनल में से NFIA को माइनस करेंगे. सो दैट मीन्स व्हाट विल वी डू? सो यू हैव टू फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम. तो यहाँ लिखेंगे आप डोमेस्टिक इनकम, पहले लिखेंगे नेशनल इनकम माइनस NFIA. तो कितना हो गया भाई? आपके नेशनल इनकम इज 850, NFIA is 30. So that means your domestic income will be how much? 820. So you move from domestic to national, national to domestic. A simple, very simple example. You know, sometimes in the question आपको directly NFIA नहीं दिया होता है. क्या दिया होता है? Factor income received from ROW, rest of the world, received from rest of the world, और दिया होता है factor income paid to ROW. मतलब क्या? हमारे फैक्टर्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं वहां से उनको इनकम मिल रही है, फैक्टर इनकम, वहां से उनको इनकम मिल रही है. और फैक्टर इनकम पेड टू आरओ, जो बाकी के नॉन रेजिडेंट्स जो यहाँ हैं, जो बाहरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो यहाँ हैं, जो विदेशों से यहाँ हैं, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं. यहाँ के नॉन रेजिडेंट्स हैं, हम उनको कुछ पे कर रहे हैं. दोनों के बीच की डिफरेंस हमें NFIA देती है, हमें पता है. सी इफ यू रिमेंबर, ये क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट्स इन ROW माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर टेरिटरी. तो NFIA को कई बार सीधा NFIA ना दे करके इन दो पार्ट्स में दे दिया जाता है. सो एट दैट टाइम यू शुड नो व्हाट आई हैव टू डू. सो यहाँ पे मान लीजिए इस क्वेश्चन में NFIA ना दे करके ये दिया होता, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ROW, फैक्टर इनकम पेड टू ROW. सो इसमें अगर फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ROW 50 होता, पेड टू ROW 20 होता, तो हम कैसे करते इस क्वेश्चन को? NFIA यहाँ था माइनस NFIA, तो ये कैसे हो जाता? 850 रिसीव जो किया वो प्लस आपने डोमेस्टिक इनकम में रिसीव किया, आपकी इनकम में आपके फैक्टर्स ने बाहर से रिसीव किया तो प्लस 50 हो जाता, और आपने पे किया तो माइनस 20 हो जाता. तो 850 प्लस 850 प्लस जो रिसीव किया माइनस जो पे किया, 50 माइनस 20 30. सो 850 माइनस 30 820. सो डायरेक्टली NFIA ना दे करके उसके पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसे ट्रीट करना है. This is another small little example of how to move from domestic income to national income and national income to domestic income. The next aggregate that we are discussing now is that will be used in national income calculation is the concept of gross and net. Okay, ठीक है. Gross word means पूरा, the whole thing. When we talk about gross means whole. Net means हाँ भैया बताओ, वी गो टू द मार्केट से, हाँ भैया बताओ कितने का है भाई, 100 रुपए का. नहीं भैया 60 बताओ कितना है. नेट बताओ कितना दोगे. सो नेट बताओ कितना दोगे भाई, काट कूट के बताओ कि एक्चुअली फाइनली आप क्या दोगे. तो बेसिकली जो हम हमारी जो कॉमन लैंग्वेज में है, नेट वर्ड इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स फाइनली क्या मिल रहा है. ग्रॉस मीन्स द एंटायर थिंग. नाउ इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, the keyword that is used to move from gross to net or net to gross, the keyword that we use is called depreciation. It is depreciation. So you have already done various concepts of depreciation. We know depreciation is nothing but the normal wear and tear of goods. जब गुड्स लगातार, कैपिटल गुड्स लगातार, मशीनरी लगातार इस्तेमाल होती है तो उसकी वैल्यू में वेयर एंड टेयर होने लगता है. उसका जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूल्यह्रास. ओके, वी डोंट डू इट इन हिंदी बट दैट्स व्हाट इट इज. उसके जो वर्थ होती है, उसकी वर्थ में कमी आने लगती है क्योंकि लगातार आप उसको यूज कर रहे हैं, और उसकी वर्थ बनी रहे तो इसके लिए हम उसमें सर्विसिंग में पैसा डालते हैं. तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन फंड. दीज कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 2.
So here, if you are moving from gross to net or net to gross in the calculation of national income, the keyword that you have to keep in mind is depreciation. Okay, so what we do, if it is gross, gross means सब कुछ मिला करके, तो अगर हम लोग gross देख रहे हैं तो सब कुछ मिला करके मीन्स नेट तो होगा ही होगा, प्लस इसमें डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा, तब एवरीथिंग मिला करके हमें ग्रॉस मिल जाता है, ठीक है ना, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दिस गिव्स यू ग्रॉस का कॉन्सेप्ट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स नेट जो है जो फाइनली है प्लस उसमें जो आपको डेप्रिसिएशन के लिए चाहिए, जब आप इसको एक साथ मिलेंगे तो आपको ग्रॉस का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। वो आपने सुना है ना ग्रॉस जीडीपी, जिसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तो ग्रॉस, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज में जो वैल्यू होती है उसमें आप डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट भर के, कि भाई आपको तो खर्चा तो करना है ना, तो वो वैल्यू भी आप इंक्लूड करेंगे, तो वो जो खर्चा डेप्रिसिएशन में लगेगा और जो गुड्स एंड सर्विसेज की अपनी खुद की नेट वैल्यू है, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें ग्रॉस का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। नाउ द इक्वेशन इज मेड, व्हेन इक्वेशन इज मेड दैट मींस इफ यू वांट टू गेट नेट, व्हाट विल यू डू? ग्रॉस डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट। सो टोटल वैल्यू में से जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसे आप एनडीपी कहते हैं कई बार, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली आपको बता दूंगी, यही वीडियो जब आगे चलेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव डन इज फ्रॉम ग्रॉस टू नेट एंड नेट टू ग्रॉस। सो व्हेन इफ यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस नेशनल इनकम तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, इफ यू हैव टू फाइंड आउट नेट नेशनल इनकम या नेट डोमेस्टिक इनकम तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। Now what I am going to do here is a small little numerical which will explain कि किस तरह से हम ग्रॉस और नेट को यूज कर सकते हैं। सपोजिंग आपका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूं कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, या जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, इट इज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज वन एंड द सेम थिंग। जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है वो फैक्टर्स करते हैं और प्रोडक्शन के लिए उनको इनकम मिलती है, तो इसलिए चाहे आप उसे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कह लें या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लें, एक ही बात है। तो मान लीजिए आपको जीडीपी की वैल्यू दी हुई है, सपोजिंग रुपीज में है हमारे फिगर्स, जीडीपी की वैल्यू आपको दी हुई है 500 रुपीज, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल 1 ले लेती हूं मैं, तो आपको जो ये आइटम्स दिए हुए हैं, एक तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम दी हुई है 500 और आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन is given to you as say 50, ठीक है, ओके, आपको 50 दिया हुआ है। लेट मी चेंज दिस पेन। सो आपको ये 50 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड, क्योंकि डोमेस्टिक है, बोला आपको भाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ढूंढिए या नेट डोमेस्टिक इनकम ढूंढिए, ये पूछा हो, तो आप क्या करेंगे बताइए? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में से आपको क्या करना है? ग्रॉस दिया हुआ है और पूछा है नेट ढूंढिए, ठीक है ना। तो ग्रॉस दिया हुआ है और पूछा है नेट ढूंढिए, तो ग्रॉस कितना दिया हुआ है आपको? 500। ग्रॉस में से आप क्या माइनस करेंगे? नेट, क्योंकि नेट ढूंढना है ना, नेट ढूंढना है आपको, तो ग्रॉस ये दिया हुआ है, क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। आपको नेट ढूंढना है, एनडीपी ढूंढना है, ठीक है ना, आपको नेट ढूंढना है ना। एनडीपी ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सो ग्रॉस कितना दिया हुआ है आपको?
आप यहाँ लिखेंगे, पहले फिगर नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी पहले फिगर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, ये जो आइटम्स दिए हुए ये लिखेंगे, दिखाएंगे आपकी क्या किस में से क्या माइनस कर रहे हैं। रीजन क्या है उसका, कई बार फिगर्स एक जैसी रिपीट हो जाती हैं तो पता नहीं लगता कि आपने कौन सा आइटम प्लस किया है कौन सा माइनस किया है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें एनडीपी ढूंढना है। एनडीपी ढूंढने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो आप लिखेंगे यहाँ ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, फिर इसकी फिगर्स लगाएंगे 500 माइनस 50 और फिर आपको एनडीपी मिल जाएगा कितना, 450। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 350, ठीक है, और आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है, ये मान लीजिए आपकी 100 है, और आपसे कहा गया है फाइंड जीडीपी। तो आप क्या करेंगे, फाइंड जीडीपी है, सो जीडीपी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। हमें जो मार्किंग स्कीम मिलती है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपके नंबर कट जाएंगे। एनडीपी प्लस ये रहा, अगर ग्रॉस ढूंढना हो तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो कितना हो गया आपका 350 प्लस 100, तो जीडीपी आपकी कितनी हो गई 450। Is that fine? So this is how we move from gross to net and net to gross. I suppose this small question, this small numerical makes the thing, this is just basic, ये clear हो गया आपको, इस तरह से हमें gross और net को find out करना है। Okay, and the next most important aggregate related to national income, the concepts that we shall be talking about will be the concepts of market price and factor cost. Market price and factor cost. So when we move from market price to factor cost or factor cost to market price, so what do we do? Now in a two sector economy, आप चाहे आप डोमेस्टिक इनकम ढूंढना चाहें या नेशनल इनकम ढूंढना चाहें, याद है ना आपको, हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम किया था, तो चाहे आप डोमेस्टिक इनकम ढूंढना चाहें चाहे आप नेशनल इनकम ढूंढना चाहें, उसको मार्केट प्राइस पर भी ढूंढा जा सकता है, उसको फैक्टर कॉस्ट पर भी ढूंढा जा सकता है। और जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर ढूंढकर बताइए या नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर ढूंढकर बताइए। सो यू शुड नो कि what these two are and how we can move from one to the other. So that is how we are discussing. Once the government sector is introduced in a circular flow, you remember the circular flow, households and producers, वो टू सेक्टर इकोनॉमी थी, फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है जहां पर कि गवर्नमेंट सेक्टर भी इकोनॉमी में रोल प्ले करती है। तो एक बार गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी में रोल प्ले करने लगती है, so taxes and subsidies start playing their role, you know, because government comes तो taxes आने लगते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, कई बार एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, कई बार वीकर सेक्शंस, प्रोड्यूसर के जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको सब्सिडीज देती है, कई बार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज देती है, और रेवेन्यू अर्न करने के लिए टैक्सेस लेती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उससे क्या होता है, किसी भी चीज के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब टैक्स लगता है, किसी भी प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगेगा, तो जब वो मार्केट में सामान को बेचेगा तो जिस प्राइस पर वो मार्केट में सामान को बेचेगा वो हो गया मार्केट प्राइस, सीधी सी बात है। अब जब उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं तो वो अपने मार्केट प्राइस को बढ़ाएगा या क्या करेगा? डेफिनेटली मार्केट प्राइस को बढ़ाएगा वो, है ना। तो टैक्सेस से क्या होता है, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर उस प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिल जाती हैं, सब्सिडीज क्या होती हैं, दे आर काइंड ऑफ कंसेशंस which the government gives to various producers in order to help in production. Okay, so subsidies
when subsidies are obtained by a producer, definitely क्या होता है कि मान लीजिए किसान, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की सब्सिडी की बात करूं, सो द फार्मर गोज टू द मार्केट, उसे खाद चाहिए, अगर फर्टिलाइजर पर उसे सब्सिडी मिल रही है, तो मार्केट में जो 1 किलो फर्टिलाइजर उसे 300 रुपए की मिल रही है, सरकार ने सब्सिडी दे दी, वही फर्टिलाइजर 1 किलो अब उससे मान लीजिए 100 का मिल रहा है, तो उसे वहीं पर 200 रुपए का फायदा तो वहीं हो गया। सवाल ये होता है कि जो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो ये 200 रुपए का नुकसान क्यों सहेगी? वो 200 रुपए का नुकसान नहीं सहती, क्योंकि ये जो 200 रुपए हैं, कौन से 200 रुपए, क्योंकि मार्केट में तो 300 का था, फार्मर को 100 मिल रहा है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ये 200 रुपए का नुकसान कौन भरेगा? सरकार भरती है। तो ये 200 rupees government pays to the fertilizer industry and tells the fertilizer industry, भाई the farmer has to be paid at 100 only, आपका जो 200 रुपया है वो सरकार भरेगी, आपके लोग सरकार देगी, पे करेगी, तो they are called subsidies, so they are kind of concessions। तो प्रोड्यूसर को जब सब्सिडी मिलती है तो उसका, तो जो मार्केट में जिस प्राइस पर वो बेचता है, तो डेफिनेटली वो अपने प्राइस को कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, 300 रुपए का फर्टिलाइजर उसको सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। So subsidies tend to lower the market price. So keep it in mind, taxes will tend to increase the market price because producer को टैक्स लगेगा, उसका सामान, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो वो मार्केट में महंगे पर बेचेगा। On the other hand, subsidies tend to lower the market price. क्यों? जब प्रोड्यूसर को कंसेशन मिलेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो वो मार्केट में सस्ते पर बेच सकता है। ठीक है? So that means in moving from one to the other, the keyword that you have to keep in mind here is called as net indirect tax. Is called net indirect tax. This is the keyword, net indirect tax, जिसे हम शॉर्ट में NIT कहते हैं। Net indirect tax is nothing but the difference between indirect tax and subsidies. I repeat, the keyword for changing from market price to factor cost and vice versa is net indirect tax. And what is net indirect tax? Nothing but the difference between indirect tax and subsidies. Clear? So supposing I have to फैक्टर कॉस्ट होता है कि वो फैक्टर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोड्यूसर को, उन पर कितना खर्चा लगता है। कौन से फैक्टर्स है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो प्रोड्यूसर को इन सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है? एकदम लोवेस्ट लेवल से। लोवेस्ट लेवल यानी वो फैक्टर्स को लेता है सबसे पहले, और धीरे धीरे फैक्टर्स के कॉस्ट से, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह वगैरह, वो ऊपर आता है और फिर मार्केट में जाकर के बेचता है। तो ध्यान रखिए, the lowest level will be factor cost, and then going up will be the market price. Okay, so now what happens? Supposing I have to find out the market price. मार्केट यानी एकदम फाइनल ऊपर, बाद में जाकर के मार्केट में बेचेगा। प्रोड्यूसर पहले फैक्टर्स को लेगा, फैक्टर्स को पे करेगा, वहां से शुरू करता हुआ, और उसके जो भी कॉस्ट हैं, टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, तब जाकर के वो मार्केट में, लास्ट में मार्केट में जाकर के बेचेगा, तो मार्केट प्राइस उसका बनेगा। तो अगर फैक्टर कॉस्ट में मार्केट में जाके क्या लग जाती है? फैक्टर कॉस्ट तो है ही, जो उसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एक तो वो उसका आ ही गया, ठीक है, वो उसने पे किया ही किया, प्रोड्यूसर को अपना फैक्टर कॉस्ट देखना ही है। और मार्केट प्राइस यानी मार्केट में जब जाता है तो क्या लग जाता है? उसका इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है। यस और नो? जो मार्केट प्राइस डिसाइड करता है उसमें वो भी डिसाइड करता है, वो भी इंक्लूड करता है जो उसको टैक्स के फॉर्म में देना है। यस और नो? अपने प्राइस में वो भी इंक्लूड करेगा, माइनस उसे क्या नहीं देना? सब्सिडीज। सो अगर मार्केट प्राइस आपको ढूंढना है, किसी भी प्रोड्यूसर का मार्केट प्राइस क्या होगा, कैसे पता चलेगा? उसकी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर अगर ढूंढनी है तो कैसे पता चलेगी? तो पता चलेगा कि भाई उसने फैक्टर्स के ऊपर कितना खर्च किया, भाई उसने इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कितना दिया, और उसने क्या नहीं दिया? उसने सब्सिडीज की अमाउंट नहीं दी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट में से उसने सब्सिडी की अमाउंट नहीं दी, मगर उसने क्या दिया? इनडायरेक्ट टैक्स दिया, तो ऐड कर लो। उसने क्या दिया? फैक्टर कॉस्ट दिया,
तो वो भी इंक्लूड कर लो। उसने क्या नहीं दिया, सब्सिडी की अमाउंट नहीं दी, तो वो माइनस कर लो। तो इन सबको लेकर के जो फाइनली प्राइस हो जाएगा वो कहलाएगा मार्केट प्राइस। चाहे आप इसको डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस ले लें या नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस ले लें, यू हैव टू फैक्टर कॉस्ट, you have to add indirect tax and you have to deduct subsidies। या in other words, अगर आपको मार्केट प्राइस ढूंढना है तो फैक्टर कॉस्ट में मैंने आपसे कहा था ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को हम एनआईटी भी कहते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एनआईटी। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईटी ऐड कर लें, व्हाट इज एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इजंट इट। तो अगर हम ये मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड कर लें, एनआईटी ऐड करने का मतलब प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर प्राइस, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट ढूंढना हो, तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट ढूंढना हो तो मार्केट प्राइस ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स यहां आ जाएगा तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज यहां आ जाएंगी तो प्लस सब्सिडीज, ठीक। सो दैट मीन्स अगर हमें फैक्टर कॉस्ट ढूंढना हो तो हम मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज मीन्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये माइनस साइन आ गया ना, इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस हो रहा है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के आगे माइनस लगेगा। यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा था, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा था तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के सामने प्लस लग गया। आप देख रहे हैं ना, ये इक्वेशन से बनेगा फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। और इसका थियोरेटिकली क्या है कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे ढूंढनी है, फैक्टर कॉस्ट एकदम स्टार्टिंग में जब प्रोड्यूसर फैक्टर्स को ही लेता है और उसको पे करना पड़ता है, तो आपको ये देखना है कि डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट पे कितनी है भाई, या नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे कितनी है, उस लोएस्ट लेवल पे जहां से प्रोड्यूसर शुरू करता है। तो आप पहुंच जाइए मार्केट पे, द लास्ट जो आपका फाइनल जो मार्केट, कि भाई मार्केट प्राइस कितना था, उसमें से, क्योंकि फैक्टर लेवल पे तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा होता ना, स्टार्टिंग में फैक्टर कॉस्ट लेवल पे तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा होता है, वो तो बाद में जाके लगता है, मार्केट में जाके लगता है। तो फैक्टर लेवल पे मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लीजिए, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। लेकिन फैक्टर लेवल पर ही प्रोड्यूसर को सब्सिडीज मिलती हैं, चाहे वो लैंड पे सब्सिडी मिले उसको, चाहे वो इंटरेस्ट ले रहा है तो लोन में उसको किसी तरह का इंटरेस्ट में उसको सब्सिडी मिले, चाहे उसको रॉ मटेरियल में सब्सिडी मिले, तो फैक्टर लेवल पे उसको सब्सिडी मिलती है तो वो एंजॉय करता है। तो इसलिए क्योंकि फैक्टर लेवल पे सब्सिडी मिलती है तो उसको ऐड करते हैं। और क्योंकि फैक्टर लेवल पे अभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट में मार्केट प्राइस पे जाकर लगते हैं, बाद में लगते हैं, तो वो माइनस कर देंगे। और मार्केट प्राइस में से इसलिए क्योंकि फैक्टर लेवल पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगे होते, फैक्टर लेवल स्टार्टिंग लेवल पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगे होते तो माइनस कर देंगे, और क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेवल पर सब्सिडीज लगी होती हैं तो वो प्लस कर देंगे। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को हम एनआईटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? सो दैट मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाते हुए अगर आप इनकम ढूंढना चाहें डोमेस्टिक या नेशनल, सो द कीवर्ड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। I suppose this should be clear, and that is how you will try and convert these.